سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، یا نور یا نور یا نور۔ کہتے ہیں ملک کے حالات بہت برے ہیں، مگر ہم سب اس کہانی سے جڑے ہیں۔ ہم اندھا دھند سوال اٹھاتے ہیں، دو چار باتیں بول جاتے ہیں، لیکن ایک اہم سوال نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک سوال ایک سوال کرنا بھول جاتے ہیں۔ میں کیسی ہوں؟ تم کیسے ہو؟ ہم کیسے ہیں؟ ہمارے ذہنی حالات کیسے ہیں؟ ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ معاشرہ ہم سے بنتا ہے۔ ڈور کی گرہ ڈھونڈ رہے ہیں، مگر اپنا ضمیر بھول چکے ہیں۔ ہم اگر اس کی وجہ پوچھیں، اس پہ تھوڑا سا غور سے سوچیں۔ ہم کیوں خوف بانٹتے ہیں؟ کیوں تانے کستے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں گالی؟ کیوں کرتے ہیں زبان کاری؟ کیوں دوسروں کی نظروں کی کرتے ہیں پرواہ؟ کیوں دوسروں کی عزت اچھالتے ہیں ہر وقت؟ ہم لڑتے رہتے ہیں تم سے، ہم ڈرتے رہتے ہیں خود سے۔ لیکن اگر تم اور میں صرف اپنے دل کھول لیں تو آسان ہو جائے یہ بوجھ۔ یہ دشمن نہیں ہمارا صدمہ، یہ دشمن ہے ہماری سوچ، یہ دشمن ہے سٹگما، یہ دشمن ہے تعصب، یہ دشمن ہے خوف، یہ دشمن ہے شرم۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ جملہ ہی دشمن ہے۔ بیمار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اسٹگما کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا فرقہ کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے، اس کا طبقہ کیا ہے۔ اس کی عمر کیا ہے۔ بے شک سوچنے سے پہلے ہی بولو۔ لیکن اس سے بھی پہلے اپنا دل کھولو۔ تو اس خوف، اس شرم، اس تعصب کو چھوڑو اور اس دشمن، اس سوچ، اس اسٹگما کو توڑو۔ تو پھر دل کھولو۔ دل کھولو۔ دل کھولو، دل کھولو، دل کھولو۔ دل کھولو۔ دل کھولو۔ ڈاکٹر طہا سر، السلام علیکم جی سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام۔ سو اٹس جسٹ ویری انٹریگنگ جو آپ نے ابھی دکھایا ہے، وہ تو کمال ہی ہے۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا، جسٹ واقعی دل کھولنا چاہیے نا، بات کرنی چاہیے۔ ڈپریشن کا شکار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور آج کے دور میں کووڈ کا دورہ ہے، اور ابھی تک کووڈ سے ہم نکل نہیں پائے ہیں۔ اکنامک سپریشن جو ہے وہ سر پہ کھڑا ہوا ہے، اور ہمیشہ ہی رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو اپ بیٹ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ساحر بھائی، آپ نے جس طرح بولا، آج کل تو حالات اور بھی سنگین ہیں، کووڈ کی وجہ سے اکنامک کرائسس ہے۔ اچھا ویسے آپس کی بات ہے، میں نا بچپن سے سن رہا ہوں کہ ہم ایک بڑے سنگین ہاں، ہر دور میں ہوتا ہے نا، بہت سنگین موڑ پہ، ہمارے وہ موڑ ہی سنگین کے نکل نہیں پاتے یار۔ لیکن مطلب ہمیں اب ڈیٹا بھی دکھا رہے ہیں نا، اگر ہم ڈپریشن کی بات کریں، بیفور کووڈ اس سے کم تھا۔ اب بیفور کووڈ کہتے ہیں 25% لوگ متاثر تھے، آفٹر کووڈ 60% تک ہمارے اسٹیٹس آ رہے ہیں۔ اینڈ اس میں ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ صرف دیکھیں، ڈپریشن تو ایک بیماری ہے، رائٹ، ایک سمجھ لیں ایک مینیفیسٹیشن ہے اس کی۔ اگر پریشانی کی ایک شکل ہے، پریشانی کی اور شکلیں ہوتی ہیں غصہ، لڑائی جھگڑا، منشیات کا استعمال، خود اذیتی۔ تو پھر ہم جو فوکس کرتے ہیں، ڈپریشن تو سمجھ لیں ایک شکل ہے، لیکن جو اصل سورس ہے وہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی ٹینشن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو ایک صحت مند طریقے سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان مسئلوں سے ہم دور رہیں گے، اگر ہم غیر صحت مند طریقے سے کریں گے تو پھر ہم ان مسئلوں میں پڑیں گے۔ ان تین لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یعنی ول آسک یو، آپ کو کبھی ڈپریشن ہوتا ہے نا؟ تو کیا آپ نارملی یوزلی کیا کرتی ہیں؟ یو گیٹ ٹو نو یور سیلف کہ آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے؟ ہاں مجھے پتہ ہوتا ہے، بٹ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے میں جتنا اس بارے میں سوچتی ہوں مجھے اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو کیا کرتی ہیں؟ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس میں۔ اوکے، تو بس وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو سیٹ ہونے میں، لیکن ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ سے۔ آپ خود ہی کرتی ہیں اس کو؟ فیصل؟ ڈپریشن تو پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ہوتا ہے۔ وہ ٹریفک کی جو صورتحال ہے، ٹریفک میں پھنس کے جو ہے نا آپ کو لٹرلی، اور جب آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہو اور خدا نہ خواستہ رات کا ایسا وقت ہو، اور کیونکہ کہیں بھی ہمارے جو حالات ہیں اس والے سے تو بڑا ڈپریسو ہو جاتا ہے بندہ کہ اب کریں تو کیا کریں۔ جہاں ٹریفک جیم ہے، آپ کو پتہ ہے آگے کوئی احتجاج چل رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے، واٹ ایور، کچھ نہیں پتہ ہوتا نا آپ کو، یو نیور نو کہ اگلے پل کیا ہوگا، آف کورس۔ تو اس میں بندہ تھوڑا سا ڈپریشن ہو جاتی ہے، لیکن اس کو پھر کور کرنا پڑتا ہے۔ آپ بتائیے۔ بالکل، ڈپریشن ایسا فیز ہوتا ہے کہ ہر کسی کی زندگی میں، لائف میں ضرور آتا ہے، اور موسٹلی میں اگر مجھے ہوتا ہے تو میں تو اپنے آپ کو تھوڑا سا اسپیس دیتا ہوں، یہ ہے کہ تھوڑا قرآن وغیرہ پڑھ لیا، تو ایک ٹائم جب گزرتا ہے تو اس کے بعد آٹومیٹکلی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ لیٹ می آسک یو دس، آپ نے تین لوگوں کا ورژن سنا، اور تین ڈفرینٹ ورژن سنے، ان کو کسی اور وجہ سے ہوتا ہے، ان کو کسی اور وجہ، ان کو لیکن ہوتا سب کو ہے۔ سو صاحب بھائی، اس میں ایک ڈسٹنگوش کرنا بہت ضروری ہے۔ جو یہ بتا رہے ہیں، اور تھینک یو فار شیئرنگ، بہت بہادری کی نشانی ہوتی ہے، یہ ہے پریشانی، ٹینشن، انگزائٹی۔
मतलब टेंशन कह लें, परेशानी कह लें। डिप्रेशन होता है एक डिसऑर्डर, एक मर्ज होता है, सही। परेशानी टेंशन तो सब उसका सब एक्सपीरियंस करते हैं, कोई ट्रैफिक की वजह से, कोई ज़िंदगी में कोई वाक़े की वजह से, राइट। तो मतलब वो सब एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो है क्लिनिकल डिप्रेशन। अब क्लिनिकल डिप्रेशन सिर्फ नमाज़ पढ़ने से बेहतर नहीं हो सकता, राइट। डायबिटीज़ का मर्ज़ है, डायबिटीज़ के मर्ज़ में आपको थोड़ी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। ऑफ कोर्स आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं और अल्लाह पाक फिर आपको शिफा देता है, लेकिन साथ साथ आपको दवाई भी लेनी पड़ती है और फिर और भी आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। सो इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि एक है परेशानी, टेंशन जो हम ज़िंदगी के हर मोड़ पे जिसका सामना करते हैं, फिर एक है डिप्रेशन जो एक मर्ज़ है और उस मर्ज़ की चंद अलामात होती हैं जो इससे काफ़ी मुख्तलिफ हैं। ओके, सो अच्छा, मैं एक बात विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता है कि मैंने जब जब खुदा की तरफ रुजू किया है मेरे तो तमाम मसाइल हल हो गए। मैंने जब खुदा, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक ज़माने में डिप्रेस नहीं होता था, बिल्कुल होता था। अब शायद नहीं होता, बिकॉज मुझे पता है सोल्यूशन सिर्फ उसके पास है, या मेरे पास है या उसके पास है, उसके अलावा तीसरे किसी। जब भी आप डिप्रेस्ड हो एक बात याद रखिएगा, या सोल्यूशन उसके पास है, उसके पास तो है ही है, या आपके पास है। आपके अलावा कोई और आपको बेहतर नहीं कर सकेगा। कितने किस्म के डिप्रेशन आपको नज़र आते हैं हमारे मुल्क में? अच्छा, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप जो जितने लोग टेलीविज़न देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे मॉर्निंग शो में फिर अब रेगुलर फीचर होंगे हफ्ते में एक दिन, और हम टेलीफोन कॉल्स लिया करेंगे। अगर आपके कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए, मुझे लगता है हमारा डिप्रेशन इसलिए ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि हम शेयर नहीं करते अपने प्रॉब्लम्स को, हम बताते नहीं। अगर आप डॉक्टर ताहा से ये बता दें कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी में ठीक नहीं है, इसकी वजह से मैं डिप्रेस रहती हूँ या रहता हूँ, तो आई थिंक ये कुछ बता सकेंगे, आपको गाइड कर सकेंगे। सो टेल मी, कितने किस्म के डिप्रेशन होते हैं? तो साहिर भाई, इसको समझने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हम समझें कि इंसानी वजूद क्या होता है। अच्छा, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से शुरू करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंसानी वजूद होता क्या है। आप अपने आप को समझ लें, आपको आधी चीज़ें समझ आ जाएंगी, और इसके बाद आप कोशिश करें कि वो जो आपके अंदर रहता है उसे भी समझ लें। दो अलग अलग बातें की हैं मैंने। वो जो आपके अंदर रहता है ना, अगर आपने उसे समझ लिया तो मसाइल का हल है। ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। Once again, welcome back and I am with Dr. Taha. हम बात कर रहे थे डिप्रेशन की और किस तरह से ये होता है। तो इंसान अपने आप को पहचाने कैसे, यहीं से शुरू करते हैं। एंड बताइए। बिल्कुल। सो साहिर, इंसानी वजूद के 3 हिस्से होते हैं, जिस्म, नफ्स और रूह, सही। अब इन ऑर्डर फॉर, अगर हमें एक खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है तो हमें उन तीनों हिस्सों को नरिश करना होता है। जिस्म को किस तरह नरिश करना है? खा के, पी के, वर्जिश करके, कोई मर्ज़ है उसका ख्याल रख के। नफ्स को किस तरह नरिश करना है? प्यार दे के और रिसीव करके, इज़्ज़त नफ्स, खुद अतमादी, दिल खोल के इजहार करके, अतमाद करके, सेहतमंद ताल्लुकात कायम करके, उस तरह नफ्स को हम नरिश करते हैं। और रूह को किस तरह नरिश करना है? जो भी आप जिस भी हायर पावर में बिलीव करते हैं, चाहे अल्लाह हो, चाहे कोई कुछ भी हो, जो भी मज़हब हो आपका, बस एक हायर पावर से कनेक्शन बिल्ड करके। और रमज़ान का ये मकसद ही है रूहानी सेहत पे हम अपनी काम करें। अब हमारे जिस्म के, हमारी सेहत के तीनों हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं। अगर किसी भी हिस्से में हल्का सा भी कमी या पेशी आए तो फिर पूरी हमारी सेहत पे मनफी असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपने पहचानना है कि आपकी जो तकलीफ़ है वो किस हिस्से की है। जिस्मानी मसला है, या नफ्सियाती मसला है, या रूहानी मसला है, और उस हिसाब से फिर आप स्टेप्स ले सकते हैं। फिर सोल्यूशंस के हिसाब से। हमारे मुल्क में इस किस्म के मसाइल से निपटने के लिए बड़े लोग होते हैं, रूहानी मसलों के तो बड़े सारे लोग होते हैं। अल्लाह ताला रहम करे और खुदा ना कभी उनको आपको ले जाए उनकी तरफ। अच्छा, फिर इंसान जिस्मानी मसलों से भी निपटने के लिए बड़े सारे लोग होते हैं, क्वैक्स हमारे यहाँ भरे पड़े। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ इतनी बेयकीनी हो, वहाँ इंसान अपने आप को पहचानेगा कैसे? तो देखिए, पहले आपने इंश्योर करना है कि आप थोड़े साइंस होते हैं कि यार ये बंदा जो है ये डॉक्टर है या फिर जो पीर है, जो भी है। देखिए हर तरह के लोग हर जगह होते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि सारे पीर ख़राब होते हैं, अब ये भी नहीं कह सकते, और ये भी नहीं कह सकते सारे डॉक्टर सही होते हैं। डॉक्टरों में भी हर तरह के लोग होते हैं जो एडवांटेज उठाते हैं। तो सबसे पहले अब अगर आप इस परेशानी या टेंशन में हैं किसी भी तरह की, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम आपको फिर कनेक्ट कर सकते हैं किसी माहिर से, और जिनको हमने सही तरह वेट वगैरह किया हो। क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मसला है कि माशरे में एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है।
डॉक्टर भी करते हैं और रूहानी वो भी करते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि अगर कोई शख्स आपसे इस बात के पैसे ले रहा है कि वो आपको कोई अमल बताए या तावीज़ लिख के वो दे, गलत है बिल्कुल। तो वो वैसे ही मुझे समझ में नहीं आता है। वैसे ही मतलब क्या है बात? पैसे तो वो लेते नहीं है जो रूहानी अमल करते हैं बिल्कुल, जो जेन्युइन जो होते हैं। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअल लोग तो बहुत है ना, और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो बहुत स्पिरिचुअल है। ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। वो जब आपसे मिलते हैं तो वो कोई मदद नहीं चाहते, बस वो चाहते हैं कि आपकी मदद हो जाए, इतना चाहते हैं। इशू हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ क्वैक्स बेतहाशा हैं, चाहे वो इधर हो या उधर हो। अच्छा, इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या, इकोनॉमिक सेपरेशन जो है, क्या ये भी डिप्रेशन का बाइस होता है? ये भी गुस्से को जन्म देता है? ये भी नफ़रत को जन्म देता है? फियर को जन्म देता है? बेतहाजा कॉजेज़ होती हैं हमारे माशरे में। सबसे जो कॉमन कॉजेज़ हैं, एक तो है इनइक्वालिटी। इवन गुर्बत से ज़्यादा जो मसला होता है माशरे में होता है इनइक्वालिटी। अगर सबके पास कम हो तो वो भी सही है, या किसी के पास ज़्यादा है और किसी के पास कम है, फिर मसला क्रिएट होता है। और हमें रिसर्च ने दिखाया है कि जिन सोसाइटीज़ में जो गुर्बत भी नहीं, जिन सोसाइटी में इनइक्वालिटी ज़्यादा है, उनमें ज़्यादा डिप्रेशन होता है, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे होते हो अपने आप को। अच्छा डॉक्टर साहब, आई वांट टू से थैंक यू टू यू। आई एम रियली सॉरी कि हम इतना मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, हम शुरू करेंगे बस इंशाल्लाह ताला। बस ये याद रखिएगा कि थ्रू आउट रमज़ान हर जुमेरात को हमारे साथ होंगे, और अगले प्रोग्राम से मैं आपकी कॉल्स भी लूँगा। अगर आप किसी टेंशन से गुजर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है ऐसी जो आप शेयर करना चाहते हैं, उसका इलाज है, तो वो डॉक्टर साहब के हम टेलीफोन कॉल्स भी आपके सामने लिया करेंगे। साथ साथ जब हमारा मॉर्निंग शो दोबारा ईद के बाद होगा, तो मैं आपको बता दूं हर थर्सडे को भी ये हमारे साथ हुआ करेंगे, एंड फॉर हाफ एन आवर आपकी टेलीफोन लाइंस को मैं ओपन करूंगा। आइए सेहतमंद पाकिस्तान बनाते हैं, आइए आपको वरी फ्री, परेशानी फ्री कर देते हैं। ब्रेक के बाद जी। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर।